to this week's edition of For His Glory. नमस्कार, उनकी महिमा के इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं। We've been talking about one of the keys that the Lord is using right now in this end of age time we've entered into to bless His people and sustain them for the days ahead. हम इन चीज़ों की चर्चा करते आ रहे थे। इन अंतिम युग में जैसे हम आए हैं, परमेश्वर एक कुंजी इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों को आशीष देने के लिए और लोगों को उसमें बने रहने के लिए। It is the key of supernatural financial provision, or God providing for us when darkness covers the earth and it's almost impossible to buy or sell. एक अलौकिक प्रकार की आर्थिक प्रबंध परमेश्वर हमारे दे रहा है, क्योंकि जो अंधकार जब समय आने वाला है जहाँ पे हमारे खरीदारी और लेन देन बहुत मुश्किल होने वाला है। It's also supernatural provisioning for the people of God in this hour to help fund the last great move of God that will shortly take place. और इस युग के लोगों के लिए जो अलौकिक आर्थिक प्रबंध इसलिए भी है कि परमेश्वर के उस महान कार्य की चीजों के लिए अपने निवेश करने पाए। This key has to do with first fruits offerings that we find in Scripture. ये कुंजी फसल का पहला फल का दान है जो वचन में हम देखते हैं। The last couple of weeks we covered the Passover offering and what significance that holds for you. पिछले कुछ हफ्ते हमने फसह पर्व के दान के विषय में देखे थे कि हमारे लिए क्या महत्व रखता है। Now we want to talk about Pentecost offering. अब मैं पेंतकोस्त दान के विषय में बात करना चाहता हूँ। As a quick review, the Passover offering gives us financial favor with man, but the Pentecost offering, or Shavuot, gives us financial favor with God. सुर्खियां में बताना चाहता हूं पिछले हफ्ते का कि फसह पर्व का दान हमारे लिए परमेश्वर की आर्थिक प्रबंध जो दया मनुष्य की ओर के लिए मिलता है, मगर शबवोत या पेंतकोस्त के दान हमारे लिए वो दया मिलती है जो आर्थिक प्रबंध परमेश्वर की ओर है। The first offering, Passover, was barley. That equates or is symbolic of the servants of God. पहला दान जो ज्यों का है वो चिन्ह के रूप में सेवकों को दर्शाता है। This Pentecost offering was an offering of the first fruits of the wheat harvest and is considered to be people, prosperity, or really the bride of Christ. पेंतकोस्त के दान गेहूं के फसल के पहला फल का दान होता है जो परमेश्वर के लोगों को या उसके दुल्हन को दर्शाता है। What the Lord is saying in essence with your Pentecost offering, in effect, is your prosperity is no longer by slavery or by what man will give you. He's saying, now I will become Jehovah Jireh, your provider. पेंतकोस्त के दान के द्वारा परमेश्वर ये चीज़ दर्शाना चाहता है कि हमारी प्रबंध हमारे स्वामी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा नहीं, मगर यहोवा ही खुद हमारे यहोवा ईरे बन के रहेंगे। This offering connects us with God's supernatural favor, help, and equipping. It connects us with His unlimited supply of resources and provision. ये दो दान है हमारे परमेश्वर की अलौकिक दया, मदद और उसके तैयारी में जुड़ता है, और ये दान हमारे लिए परमेश्वर की असीमित उसके स्रोतों की प्रबंध में जोड़ देता है। So while the barley offering was to remind Israel that because of God they were no longer slaves but had favor with man, the wheat offering was to signify that Israel had favor with both God and man. जौ के दान हमें ये दर्शाता है कि हमें परमेश्वर की दया मिलता है, जिससे कि हम मनुष्य की गुलाम नहीं, मनुष्य की दया मिलेगा। मगर गेहूं के दान हमें ये दर्शाता है हमें मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी हमें दया मिलता है। Let me give you an example in my own life of how this wheat offering was effective in my life. मैं अपनी जीवन की गवाही में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे गेहूं की दान मेरे जीवन में प्रभावित किया है। Now we're not talking specifically about wheat. If you tuned in the last few weeks, you will understand that we're talking about a special offering 3 times a year that we offer unto God. जैसे मैं गेहूं की दान जब बताता हूं, इसके मतलब वाकई में गेहूं के बारे में नहीं। अगर आपने पिछले सत्रों को देखा होगा, आप में मालूम है कि साल में 3 प्रकार के 3 समय एक ऐसे खास दान हमें परमेश्वर को ले आना है, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। This is above and beyond our tithe and regular offerings that Scripture teaches us we should do regularly. जो दान और दशमांश हम लगातार देते हैं, उससे भी बढ़कर हमें देने वाली दान के विषय में बात कर रहे हैं। And so my testimony is that some years ago I was living in San Antonio, Texas. मेरी गवाही ये है कि कुछ साल पहले मैं सैन एंटोनियो टेक्सास में रहता था। And I was living in a small apartment and I had a part-time job because jobs were very scarce at the time.
मैं छोटे से घर में रहा करता था और उस वक्त मैं अंशकालिक नौकरी किया करता था क्योंकि उन दिनों में नौकरियों की तंगियां चल रही थी। But I never forgot, I do not forget to bless others and to give unto God. मगर मुझे याद, मैं कभी भूलता नहीं था कि मैं परमेश्वर के लिए देने में या दूसरों को मदद करने में कभी चूकता नहीं था मैं। And so at that time, those many years ago, the Lord said, I'm releasing you now into your calling and your destiny. और परमेश्वर उस समय मुझसे बात करते कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुलाहट में तुम्हें आज़ाद करता हूँ तेरे गंतव्य की ओर। And I knew it was time for me to leave that city and go. At that point, I didn't quite know where. और मुझे मालूम है कि उस समय मैं अपनी शहर को छोड़ के मुझे जाना है, मगर पता नहीं था कि कहाँ जाना है। And at that time, I got a phone call from an individual that lived almost 2,000 miles away, stating the Lord had spoken to him that I was supposed to move to California. और उस वक्त मेरे जानने वाले एक व्यक्ति ने, जो 2000 मील दूर मुझसे हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि परमेश्वर कहा कि तुम्हें आगे बढ़ना है, कि जो कैलिफोर्निया जो स्थान है वहाँ पर। He not only said I was called to leave, he heard that from the Lord, but he said, I want to pay for that move for you. उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने सिर्फ मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें वहाँ से निकलना है, मगर साथ ही साथ वो सारे बदलने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझसे कहा है। And so I was able to rent the moving truck and pack all of my household goods, and I drove across the country. और उस वजह से मैं सामान ले जाने वाले गाड़ी को बुक करने के लिए मुझे मदद मिला और मेरे सारे सामान को लेकर अपने शहर को छोड़कर निकलने में मददगार हुआ। Now you have to understand, I'm going by faith. I do not know where I'm going to live, where I'm going to place all of my goods, or what God's got for me to do. अब आपको जानना ज़रूरी है, मैं विश्वास में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ मेरे सामानों को रखना है, मगर परमेश्वर ने कहा वहाँ से निकलने के लिए मैं निकल गया। But he had been teaching me about this Pentecost offering, about having favor with both God and man. मगर परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे ये पेंतकोस्त के दान के विषय में, जहाँ पर मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी दया मिलता है। So I went by faith, and when I got there, I asked this man, where is the local storage unit so I can put my things away and store them until I know what the Lord's telling me to do. मैं इसलिए विश्वास में जा रहा था। जैसे वहाँ पहुँचा, मैं उस व्यक्ति से पूछा यहाँ पे गोदाम कहाँ पर है सामानों रखने की, ताकि मैं अपने सामान वहाँ रख दूँ जब तक मुझे कोई जगह ना मिल जाए। He said, no, while you were on your way, the Lord told me to give you this house, and he took me to a home that he gave me. और कहा नहीं, मगर जैसे तुम आ रहे थे मेरे साथ तो परमेश्वर ने कहा कि इस घर को देने के लिए, तो उसने वो घर मुझे दिया। Not only that, he paid to have the whole thing remodeled. और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर जो है पेंट वगैरह किया, वो सब कुछ अच्छे से हमारे लिए बना दिया। And so I was profoundly blessed to have what looked like a brand new house that I had free and clear to live in. और मैं बहुताय से आशीष पाया क्योंकि मेरे लिए एक ऐसे नया घर सा मिला जहाँ पे मैं मुफ्त में रह सकता हूँ। Shortly after that, somebody saw that I did not have my own car, and they said the Lord told them that they were to bless me with a vehicle. और उसके बाद ही किसी व्यक्ति ने मुझे देखा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस गाड़ी को आपको देने के लिए। And so I was given an American sports car. और हमारे लिए जो है अमेरिका की स्पोर्ट्स की गाड़ी दी गई। About a month after that, I got another phone call from another individual, and they said, hey, we have a motorhome for you, a travel trailer we want to bless you with. एक महीने के बाद एक और व्यक्ति से मुझे फ़ोन मिला, उसने कहा कि आपके लिए हमारे पास एक मोटर होम रखा गया है, एक ट्रैवल ट्रेलर है कि जो प्रभु चाहता है कि आपको देने के लिए। And shortly after that, somebody offered me a 45-foot sailboat. और थोड़े दिन के बाद ही किसी ने मुझे 45 फुट एक नाव मुझे दिया। All of these blessings began to pour in. ये सारी आशीष हमारे अंदर उंडेला गया। Why? Because God's word is true. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। And so I had learned not only through studying of the word, receiving revelation from the word, but also walking in the blessing of the word, that his word is truth. मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचन की प्रकाशन और उसकी प्रगटीकरण का ही आशीष नहीं मिला है, मगर उसकी आशीषों में चलने के लिए भी प्रभु के अनुग्रह मिला है। Now let me caution you, we have a culture today that seems to think we can manipulate God by saying, Lord, I've given you this much, so now you have to give me this much. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, इन पीढ़ियों में ऐसे लगता है कि हम परमेश्वर को जो है बहका के कह सकते हैं कि प्रभु मैंने इतना तक दिया है तो आपको इतना तक देना है। No, we should learn to give in obedience to the word and because we honor and respect God. नहीं, हमें परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता में देना है क्योंकि हम परमेश्वर की सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। Not because we want to manipulate him and we have a scheme to get more, to get rich.
इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर को बहका कर हम धनी हो जाएं और ज़्यादा पैसा मिलें। And so we give because of love, because of respect, because of honor. हम इसलिए देते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। It was not long after the Lord had blessed me with all of these things, He told me to give it all away. और ज़्यादा लंबा समय नहीं था कि ये सारे आशीषों को मुझे देने के बाद प्रभु ने मुझसे कहा, ये सब तुम लोगों को बांट दो। Some have asked me, boy, was that hard to do? You finally had a house that was yours? और कुछ लोगों ने मुझसे ऐसे पूछा, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए एक अपना घर मिला है? No, in reality it was not difficult because I've learned the lesson that everything we have belongs to God anyway. And when He says to do something with it, we must be obedient and do what He says. मैंने कहा नहीं, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है ये परमेश्वर के द्वारा ही मिला है, इसलिए प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ और जब वो कुछ कहे करने के लिए करूँ। And so if we miss the Passover offering, we miss unmerited grace, divine protection, and the favor of our fellow man. अगर हम फसह पर्व के दान से चूक जाते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की जैसी अनुग्रह जिसकी कोई नाप नहीं, कोई कीमत नहीं, या लोगों की प्रयोग से मिलने वाली दया जो मिलना है वो हम खो देते हैं। And that blessing, that Passover offering equates to a 30-fold blessing. और वो फसह पर्व की जो आशीष हैं 30 गुने आशीष के साथ तुल्य है। And it is in effect until the very next Passover when you are by obedience through love and respect, you give your first fruits once again. उसकी असर अगला फसह पर्व तक रहता है, जब आप परमेश्वर से प्रेम रख के आज्ञाकारी होकर आदर करने के लिए जब फसह पर्व का दान देते हैं, अगला दान तब तक चलता रहता है। If we miss the Pentecost offering, we miss supernatural favor from God. With this offering, we move from 30-fold to 60-fold blessing. अगर हम पेंतकोस्त के दान से चूक जाते हैं तो इसके मतलब हम परमेश्वर की अलौकिक उस दया से हम चूक जाएंगे जो हमारे लिए 30 गुना से 60 गुना की आशीषों में बदलता है। Let me ask you a question. If you had a 30-fold increase in your life, how would that affect you in the coming year? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास 30 गुना की आशीष की प्रभाव रहे तो आने वाले दिनों में वो आपके लिए कैसा असर करेगा? If you had a 60-fold blessing and increase in your life, how would that affect your life? अगर आपके पास 60 गुना आपके जीवन में आशीष और बढ़ोतरी हो तो अब उसका असर कैसे होगा? I don't know about you, but that level of increase changes everything in a life. It changed my life as I learned to walk in this revelation. It changed the life of my wife. It's changed the lives of others that we've taught this to that have received the revelation, and it can change yours. आपके बारे में पता नहीं, मगर हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े एक बदलाव को ले आया जब ऐसे प्रकाशन को पाकर आज्ञाकारी हुए हैं। मेरी पत्नी के जीवन में परमेश्वर ने बड़े प्रभाव ले आया है और जिन्होंने हमारे प्रकाशन को सुनकर आज्ञाकारी हुए हैं उन सब के जीवन में बड़े प्रभाव परमेश्वर ले आया है। Now the last of the 3 yearly offerings brings us to the 100-fold blessing. This is the offering of Sukkot, also called the Feast of Tabernacles. साल के 3 दानों में से जो अंतिम दान जो है जिसमें हम 100 गुना आशीष पाते हैं, जिसे हम शूकार कहते हैं, नहीं तो तंबू का पर्व कहते हैं। With this offering, God brings in the early rain and the latter rain blessing. इस आशीषों के द्वारा परमेश्वर हमारी आरंभ की बरसात और बाद की बरसात को ले आता है। The early rain ensures that your harvest will take deep root. The latter rain ensures that your harvest will produce an abundance of fruit. आरंभ की बरसात वो दर्शाता कि आपके बीज गहराई में जाकर जड़ पा के फसल उगेगा और बाद की बरसात बताएगा कि आपके फलों में बहुत से फल लगेंगे। Without the early rain, your root system will remain shallow and the storms of life will wash away your harvest. But when you give the Sukkot offering, the Feast of Tabernacles, you activate the final part of Malachi 3:11. आरंभ की अगर बरसात ना होता तो आपके जड़ में गहराई ना पकड़ता, उस वजह से तूफान और आंधी आने से वो गिर सकता है। मगर सुकोर दान के द्वारा आप वो जो मलाकी की कही गई आशीषों को खोल देते हैं जिससे कि आपकी बाद की बरसात आए, आपके लिए फल लगने पाए। Malachi 3:11 says, I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground,
nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field. मलाकी 3 अध्याय का 11 पद में कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। So with these 3 offerings we have favor with man, favor with God, and the promise that our harvests will root deeply and produce an abundance. हमारे पास अभी 3 आशीषें हैं कि मनुष्य की दया, परमेश्वर की दया और हमारे फसलों का जड़ और गहराई में जाकर फल ले आएगा। We will no longer go through those valleys of darkness, that place of lack and desperation just to meet our needs. हम वो अंधकार की तराई में ना जाएंगे जहां हमारे लिए कमियां होगी, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुसीबतें होंगी या संघर्ष होंगे। There's one more concept related to how we go from 30-fold to 60-fold to 100-fold blessings. It is the Hebrew understanding that there is not 1, not 2, but 3 different ways in which we are to give. एक और विचार है कि हम कैसे 30, 60 और 100 गुना में हम आशीषों में बढ़ते जाएं हमारे जीवन में। तो इब्रानियों समझ के अनुसार हमारे लिए 3 तरीके की देने का एक तरीका है। In Malachi 3:10, the Israelites were told to tithe that there may be food in my house. So the tithe was to fill the warehouse of God. मलाकी 3 अध्याय के 10वें पद में कहता है कि अपने दशवांशों को मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन का कमी ना रहे। तो दशवांश हमारे लिए भंडारों की भरपूरी को ले आता है। The tithe was brought in so that the priests could present sacrifices for people who did not know God, as well as for those who could not afford to purchase their own sacrifices. दशवांश याजकों के लिए मदद करता था कि वो बलिदान ले आने पाए, जिन लोग बलिदान लेने के लिए उनके पास कीमत नहीं रहता उनके लिए, और जिन लोग परमेश्वर को नहीं जानता है उनके लिए बलि चढ़ाने के लिए। So we tithe so that the church can afford to spread the gospel throughout the world, and we tithe so that God's house can be full of people who do not yet know the sacrifice that was given for them through Jesus Christ. दशवांश इसलिए देते हैं कलीसिया में ताकि परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य बढ़ोतरी के लिए कुछ रुकावट ना हो, आगे बढ़ने पाएं, और साथ ही साथ लोगों को परमेश्वर के भवन में भरने के लिए हो, जिससे कि वे लोग जो नहीं जानते हैं कि उनके लिए आशीषों के एक स्रोत है करके वे भी प्रभु के भवन में आएं और आशीष पाएं। The second way is by giving through these offerings, which I just expressed and taught over the last few sessions. दूसरा तरीका जिन दानों के विषय में पिछले कुछ सत्रों से मैं आपको विवरण देते आया हूं उनके द्वारा। The third way is spoken of in Matthew 6:31 through 33. तीसरी तरीका जो मत्ती 6 अध्याय के 31 पद से लेकर 33वें पद में लिखा हुआ है। Now I won't read that scripture to you, you look it up yourself. But in the Hebrew, the word righteous is translated as acts of kindness. मैं आपके लिए उसे पढ़ने वाला नहीं हूँ, मगर आप खुद पढ़ के देखिएगा। मगर वहाँ पर जो धार्मिकता का शब्द इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है कि आप लोगों के लिए दया का कार्य करें। So you'll never get 100-fold blessing from God. Let me do that again. So you'll never get 100-fold blessing from God until you understand the tithe, the offering, and acts of kindness. और इसीलिए परमेश्वर से आप 100 गुना आशीष तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के लिए दशवांश दें और ये दानों को दें और लोगों के लिए दया का काम करें। This is why Jesus didn't stop the widow woman from giving the widow's mite in Luke 2:21 verses 1 through 4. और इसी वजह से यीशु मसीह ने विधवा के लिए जो कार्य मिलना था उसे वहीं पर नहीं रोक दिया है। हम देखने पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। Jesus knew that this poor woman would never get into the flow of God's abundance until she first helped somebody else. और यीशु जानता था इस विधवा के लिए परमेश्वर की वे संपूर्ण आशीषों में नहीं आ सकती जब तक वो किसी के लिए मदद ना करें। I pray that this year and in the coming years you learn to honor God with your first fruits offerings on the feasts that are appointed times set for you. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस साल में कि परमेश्वर की उस आशीषों को आप पाने वाले बन जाएं, जैसे कि आप फसल के पहला फल का वो दान को आप देने की शुरुआत करते हैं। 3 times a year on Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacles. Remember to honor God through the offering and do it for His glory. याद रखिए साल में 3 बार फसह के पर्व और पेंतकोस्त के दिन का और तंबू के पर्व में आप दानों को चढ़ाएं और जो कुछ करें आप उनकी महिमा के लिए करें।